जूते तो उतारो, जूते क्यों नहीं उतारे? जूते उतार। So खेल खेल में started off in 2014. We few of us who were in Teach for India fellowship felt that we are not happy with the version of academics being only narrowed down to literacy and numeracy, and wanted to broaden its horizon. And we felt sports is a very powerful medium. So we started by organizing sports tournaments within the TFI classrooms. And when we graduated out of the fellowship, we decided to kind of take that leap of faith and registered as a full-time organization. So we are registered as a non-profit organization, and the organization focuses on changing the perception of sports in the country and starting from the bottom up in some of the toughest communities in Delhi. We're in Delhi currently. And what we want to achieve is to build a strong grassroots culture of sport, which is absent in our country, barring very few geographies, very, very few of them. So, and sports benefits, you all know, but the larger aspect is how to realize the culture, change the culture at its roots from being a very, inactive and kind of a societal pattern, or like playing very casually and cricket. So changing to a more structured, sports science oriented, while making it a very simple ease to reach for children in the communities where you work, not making very infra heavy or resource heavy. The idea is to build the culture and sustain the culture. That's it. We have been here since 2015-16, and the community is one of the most challenging communities. Ask any auto wala to come to Sangam Vihar, they will straight away refuse. And if I'm not wrong, this is the second largest community unauthorized settlement, maybe as they say, after Dharavi in the Horatia. Challenges majorly, I'll say, substance abuse is there, maybe alcoholism is there, children kind of getting involved into, I'll say, not so healthy groups is there. So yeah, these are big challenges. And this space was a kind of a dump yard. So all the parents, and the sisters, and the brothers or the siblings of our, I'll say, children who are in the program, they got together and we cleaned this space, watered this place, leveled it, and created our kind of own mini football ground. मेरा नाम गायत्री है, मैं 11th क्लास में हूँ और मैं 3 साल से केकेएम में खेल रही हूँ और मैंने अभी तक दिल्ली लीग खेला है, फुटसाल खेला है और अभी स्कूल नेशनल्स के लिए ट्राई कर रही हूँ। जब मेरी बहन पहले खेलती थी मगर कुछ कंडीशन, मतलब कुछ घर में प्रॉब्लम थी, तो उस चक्कर में उसने कंटिन्यू नहीं किया। तो एक बार सुनाई दिया था मेरी मम्मी को कि फ़ुटबॉल के लिए, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पहली बात। तो जब मैंने खेलना चाहा, मेरी गली से बहुत बच्चों ने, मेरी रिश्तेदारों में से भी बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया। फिर हमने खेलना स्टार्ट किया, फिर बीच बीच में बच्चे छोड़ते गए। तो मैं और खुशबूजा हमने भी साथ में ज्वाइन किया था, तो हमने कंटिन्यू रखा। अभी तक हमें 3 साल हो चुके हैं, हम खेलते हैं अभी। अच्छा, और आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं? हाँ, अभी हमने अंडर 9, अंडर 13, अंडर 11 इनका ग्रुप, पहले हमने गली टूर्नामेंट करवाया, फिर उनमें से बच्चे सिलेक्ट किए, फिर उनको हमने टूर्नामेंट कराया, मोहल्ला टूर्नामेंट यहीं पे करवाया। फिर हमने उसमें से भी बच्चे सिलेक्ट किए, फिर हमने समर कैंप किया 1 महीने का, फिर हमने लास्ट में टूर्नामेंट करवाया पूरा, मतलब जितने बच्चे हमारे समर कैंप में थे उन सब का टूर्नामेंट करवाया। फेवरेट प्लेयर ऐसे तो कोई नहीं है,
मगर सुनील छेत्री मेरा वो है आइडल। हम 6 कोचेज़ हैं जिन्होंने करवाया था मोहल्ला टूर्नामेंट। हम ही बच्चों को खिलाते हैं। कोमल, खुशबू, गायत्री, शमा, सपना, नेहा। सारी लड़कियाँ? हाँ, सारी लड़कियाँ। और जो कितने लड़कियाँ खेलते हैं वैसे यहाँ पे? वैसे अप्रॉक्स 70 प्लस। 70 प्लस बच्चे हैं टोटल सारे हाँ। एज ग्रुप्स के। यहाँ पे पर अभी 4 ही महीने हुए हैं, 3-4 ही महीने हुए हैं। अभी बच्चों की ट्रेनिंग कराते अभी हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है कराना प्रैक्टिस। कुछ लोग के तो अभी 15 दिन ही हुए होंगे या अभी कुछ के 2 महीने हुए हैं, तो अभी स्टार्ट ही किया है। जो हमारे खेल में है और अभी जय कुमार भी है, तो दोनों हेल्प कर रहे हैं और फैसिलिटी सब ठीक है। बस ये जो हम ग्राउंड पे करते हैं वो हम सब मिलके क्लीन भी करते हैं इसे, क्योंकि किसी से लगे ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कांच के टुकड़े ज़्यादा होते हैं, दारू की बोतल तोड़ते हैं तो इसके तो ज़्यादा कूड़ा भी लोग यहाँ ज़्यादा फेंकते हैं, तो कूड़े का भी यहाँ रहता है। और सफाई करते हैं यहाँ पे हम। जब कुछ खेल प्रैक्टिस करने आते हैं, जब दिखता है कि ज़्यादा गंदा है तो करते हैं, हम मिल के एक दिन लेते हैं और करते हैं। माय नेम इज़ कोमल, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अभी तक कर्नाटका लीग, दिल्ली लीग, स्कूल नेशनल और बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। और मुझे इंटरेस्ट कैसे आया, मेरी गली में मतलब बच्चे खेलते थे फुटबॉल, तो फिर नए नए में मतलब देख के ही तो सीखते हैं, तो हमने देखा इनको खेलते हुए तो हम लोग भी आ गए, तो फिर खेलते खेलते इंटरेस्ट आ गया बस। हाँ, मेरा नाम खुशबू है और मैं 16-17 साल का हूँ और मैं 12th में हूँ। और मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए आया था कि मैंने देखा था बच्चे खेलते हैं यहाँ पे आके, तो मैं यहाँ पे खेलने के लिए आए थे हम लोग। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए थे पर वो अब निकल गए, तो मैं हूँ। कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आपको आई खेलते हुए? हाँ, यहाँ पे ग्राउंड मतलब वैसा था, थोड़ा ख़राब था बहुत। अभी हमने इसे ठीक किया है, थोड़ा घास उगाने की कोशिश की थी पर उगी नहीं यहाँ पे, बहुत लगती है यहाँ पे चोट। इसके बाद ये बॉयज़ भी है जो हमें खेलने नहीं देते थे, फिर हमने बहुत इनसे लड़ा भी है ग्राउंड के लिए। इसके बाद हमें इतना ग्राउंड मिला है। तो तुम स्कूल जाते हो फिर खेलने आते हो? हाँ, हर रोज? हाँ, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 3 दिन खेलने आते हैं। एक दिन जिम भी होता है, एक दिन थ्योरी सेशन भी होता है, ये सब होता है बस।